गोविंदा बोल तू हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। की प्रभुपाद बोलो। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
प्रभुपद जय प्रभुपद। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद। प्रभुपद जय प्रभुपद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, जगद्गुरु शिल प्रभुपद। जय प्रभुपद जगद्गुरु शिल प्रभुपद। हरे कृष्णा, हरि बोल। सब कैसे हो? हाँ। हरे कृष्णा। Raghav Pandit, Radha Pyari, she came in the same flight. I completely forgot, the car. Is somebody bringing her? Somebody went to bring her. Yeah, okay. मैं तो ऐसे निकल गए हैं और मैं बाद में मुझे याद आया कि वो आई है, वो एक सहेली के साथ आई है, लंदन से आई है, पालिका। And also 2 devotees came from Australia, Satya Maharani. Satya actually got initiated in Ujjain and also Radha Vinodini. Oh, there she is with a camera. Good. So they will be here for some time, almost a month. So take care of them nicely, all the Matajis. You have a very good friend here. And Champaklata,
They'll be taking treatment starting from tomorrow. So you take care of, they'll be under your custody. Huh? So take care of them nicely. Jamuna Priya, you also take care of them nicely. And everybody take care of them nicely. And Satya is from Sydney, Satya and Ravi. And for last few years, when I go to Sydney, they insist that I stay at their place. So you see, I am their guest when I go there. So now they're our guest when they come here. So with that understanding, you take care of them. Lila Purushottam, you're back. When did you come back? Oh, okay. Very good. I'm so happy to see everybody. কি খবর? তোমাকে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, I was about to say, it's getting quite cold. Why Gaur-Nitai is bare body? কাপড় পরেন গৌরনীতার খালি গা কেন? তুমি কটা পরেছো? হ্যাঁ, শার্ট পরেছো, গেঞ্জি পরেছো, তারপর একটা কোট চাপিয়েছো। Be sensitive. Gaur-Nitai. Also Krishna is also bare body. Pujari Maharaj. Where is Arunaksha? Alternate. ঠিক আছে. And so I'm very happy to be here. Very happy to see all. And from your face I can also see that you all are very happy. I don't know whether it's because of your seeing me or Gaurhari, কবে এসছো তুমি? হ্যাঁ, না কবে এসছো? সোমবার এসছো। আচ্ছা, আর ইয়ে Gaurhari is okay here. You are Gaurhari is taking care. He sends the plants, all the flower plants from Calcutta. He brings it himself, and now he has come also to see that they are properly planted. Very good. কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? হ্যাঁ, okay. Hare Krishna, Brajendra Krishna, and Abhay Krishna, Abhay Charan. We have to meet with you because there is a lot of I have a lot of weight to put on your shoulder now. A lot of lakri ka weight and gold ka weight also. Gold leafing. You are doing very well. Thank you very much for taking all the responsibility. And all the where's Bimal Krishna and Radha Vinod? So everything is going on nicely? Huh? Good. Everyone is happy? Thank you. So I'll be here for next few days. Okay, maybe I can speak in Hindi. मैं रहूँगा कुछ दिन के लिए और तो मिलते रहेंगे और खुशखबरी भी सुनेंगे और सुनाएंगे भी। सुनाने का बात तो ये है कि प्रचार हो रहा है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए हमको जाना पड़ता है विदेश और लोगों को समझाना है। मैं तो सोचता हूँ कि तुम सब समझ गए हो, तो क्या समझे हो, कुछ बताओगे? पहली बात तो ये है जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य
ये भौतिक जगत को भोग करने जीवन का उद्देश्य है? हाँ? तो जीवन का उद्देश्य क्या है? भोग करना, शुरू शुरू में लोग भोग करना चाहते हैं, इसलिए वेद में कर्म कांड का निर्णय हुआ है। कर्म कांड में ये वर्णन होता है कैसे लोग भोग कर सकते हैं। भोग करना चाहते हैं, ठीक है, कोई हर्जा नहीं, करो, लेकिन सही रूप से करो। तो ये निर्णय, ये निर्देश वेद दे रहा है। जैसे देखो, कोई आदमी सही रूप से पैसा कमाकर भोग कर रहे हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, उसमें कोई डिफिकल्टीज, मुश्किल नहीं है उसमें। अगर कोई आदमी दूसरे को मारकर, चुराकर, उसके लूट लिया, पैसा लूट कर वो भोग करता है, ये भोग क्या सही होगा? ये भोग में मुश्किल ये होगा कि वो जो गलत काम कर रहा है, भोग ठीक है कर रहा है, लेकिन उस भोग का परिणति क्या होगा? जो गलत काम वो कर रहा है उसलिए उसको सजा मिलेगा। कोई सजा मिलना चाहते हैं? अगर एक दिन को भोग हुआ और जिंदगी भर कैद हुआ, तो वो क्या सही होगा? नहीं। तो इसलिए वेद में ये निर्देश दिया गया है, गलत काम मत करो। गलत काम का मतलब क्या है? गलत काम का मतलब है पाप। गलत काम को पाप कहा जाता है। गलत काम मत करो, सही काम करो। और सही काम का मतलब है पुण्य। पुण्य से सुख मिलेगा, पाप से सजा मिलेगा। और वेद में निर्देश दिया गया है कैसे कैसे तुम भोग कर सकते हो। भोग का मतलब क्या तो होता है, हम जो चाहते हैं उसको जब हमें मिलता है तो हमें सुख मिलता है। तो हम सुख भोग करना चाहते हैं, सुख और दुख। हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। लेकिन चाहे कितना सुख हमें मिलने का कोशिश हम करें, हम सोचते हैं हमें बहुत पैसा मिल जाए, तो वेद बोल रहा है ठीक है, ऐसे ऐसे काम करो, पैसा मिलेगा। कोई बोलता है वो पैसा बहुत मिला है, बल्कि ये सही नहीं है, और कुछ हम चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मैं राजा बनना चाहता हूँ। ठीक है, राजा बनो, ऐसे ऐसे काम करो, राजा बनोगे। तो राजा बनने के बाद वो सोचता है अरे ये तो छोटा सा एक राज्य है, हम सारा पृथ्वी का राजा बनना चाहता हूँ। तो वेद बोल रहा है ठीक है, ऐसे ऐसे काम करो, तुम सारे पृथ्वी का राजा बनोगे। तो पृथ्वी के राजा बनने के पश्चात वो सोचता है पृथ्वी का राजा बनना भी सही नहीं है, हम स्वर्गलोक का राजा बनेंगे, इंद्र बनेंगे। वेद बोल रहा है ठीक है, ऐसे काम करो, इंद्र बन सकोगे। बल्कि इंद्र बनने के पश्चात भी वो सुखी बनता है? नहीं, इंद्र का भी काफी दुख मिलता है। देवताओं को भी काफी दुख, जब दानव ने आकर राज्य ले लेता है तो उसको बहुत मुसीबत होता है। तो इसलिए तब वो सोचना शुरू, बहुत सारे भोग के पश्चात वो सोचता है कि क्यों मुझे कष्ट मिल रहा है। मैं कष्ट नहीं चाहता हूं, लेकिन कष्ट क्यों मिल रहा है। तो ये कष्ट क्यों मिल रहा है, ये जो विचार, ये विचार उसको कर्म कांड से आगे ज्ञान कांड में ले जाता है। और ज्ञान कांड में बहुत सारे विचार होता है, बहुत सारे दर्शन है। न्याय दर्शन के माध्यम मालूम पड़ता है कि ये भौतिक जगत
एक कारागार जैसे हैं और हम सब यहाँ कैदी हैं। और ये शरीर जो है ये सजा मिलने का एक बहुत बहुत बढ़िया मशीन है। तो देखो, हाँ, ऐसी एक जगह में हम हैं जहां हमें कष्ट ही मिलना चाहिए। कष्ट दुखालयम, दुख प्राप्ति की जगह। और ये शरीर जो है ये दुख मिलने का एक बहुत सुंदर मशीन है। जैसे सोचो शरीर का कोई भी अंग ले लो, चाहे देखो ये लिटिल फिंगर, कितनी रूप से इसको हम कष्ट दे सकते हैं। हाँ, इस अंगुली को, हाँ, ओके कृष्णदास, एक वो कृष्णदास बोल रहे जलाती, जला करके, तो आग लेके अंगुली को जलाएगा तो कैसा लगेगा? हाँ, मजा मिलेगा या सजा मिलेगा? अच्छा, एक चक्कू लेके अंगुली को काट दो, क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा। हाँ, एक पत्थर लेकर इसको मारो, क्या मिलेगा? ऐसे कितनी रूप से ये अंगुली को हम कष्ट दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अब सोचो कितने रूप से इस अंगुली को हम, हाँ, सुख दे सकते हैं, आराम दे सकते हैं। उसकी तुलना में बिल्कुल नहीं। ये जो विचार हैं ये हर शरीर का हर अंग में प्रयोग हम कर सकते हैं। ये नाक ले लो, कान ले लो, हाथ ले लो, पैर ले लो, हजारों रूप से हम उसको वी कैन इन्फ्लिक्ट पेन बट नो वे वी कैन गिव प्लेजर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर क्या है? लीला पुरुषोत्तम, हाँ, नहीं, शरीर दुखालय नहीं। हाँ, ये शरीर क्या है अमल भक्त? ओके, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोलोगे? ठीक है, हाँ, कष्ट भोग करने का यंत्र है ये। हाँ, तो अब सोचो, हाँ, एक जगह है दुख माल प्राप्ति के और शरीर है, हाँ, ये दुख प्राप्ति के, हाँ, लिए। तो इस जगह में हमें सुख क्या मिलेगा? सुख हम किसके बोलते हैं? जब दुख को हम हटाते हैं तो उसको हम सुख बोलते हैं। हम एक, हाँ, बहुत कष्टदायक स्थिति में हैं। वो कष्ट को जब हम हटाते हैं, हाँ, कुछ कुछ आयोजन करके, तो हम बोलते हैं वो है सुख। लेकिन कब तक हम हटा सकते हैं? 3 प्रकार का दुख होता है, क्लेश होता है। शरीर और मन के द्वारा क्लेश, और दूसरे कोई आदमी या जानवर आके हमें कष्ट देते हैं, वो एक प्रकार का क्लेश। और प्राकृतिक विपर्जय के कारण जो क्लेश होता है, और है ये तीसरे प्रकार का क्लेश, आधि आत्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक। ये 3 प्रकार का कष्ट, सजा हमें मिल रहा है इस भौतिक जगत में। चाहे कितना हम उसको संभालने का कोशिश करते हैं, हटाने का कोशिश करते हैं, नहीं सकेंगे। तो ये है भौतिक जगत का स्थिति। ये समझे हो? समझ में आया? हाँ? अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? तब विचार होता है ये भौतिक जगत क्या है। ये हमें सांख्य दर्शन में ले जाता है। सांख्य दर्शन में विचार होता है भौतिक जगत क्या है। करते करते, हाँ, देखते हैं 5 उपादान हैं, पंचभूत हैं, हाँ, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। इस पंचभूत से, इस 5 उपादान से इस भौतिक जगत का
सृष्टि हुआ है। और हमारा 5 इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, कान, त्वचा और टांग, जिह्वा। तो 5 इंद्रिय के द्वारा जब 5 उपादान का संयोग होता है तो उससे 5 इंद्रिय का विषय बनता है। जैसे आकाश और कान, कान के साथ जब आकाश का संस्पर्श होता है शब्द का उत्पत्ति होता है। त्वचा के साथ वायु, स्पर्श अनुभूति। आंखों के साथ अग्नि, रूप का प्रकाश। जिह्वा के साथ पानी, रस का प्रकाश। और मिट्टी के साथ नाक, गंध का प्रकाश। ऐसे रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। और तत्पश्चात 5 कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पानी, पायु, उदर, उपस्थ। तो कितना हुआ? 5 4s are 20। 5 को 4 गुण होता है तो 20। इसके ऊपर, इसके परे हैं मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 सूक्ष्म उपादान। इसके परे है महत्तत्व। 24 उपादान के द्वारा, 24 विषय के द्वारा ये भौतिक जगत का पूरा विश्लेषण हो गया है। तब वो विचार करते हैं ये जो है ये दृश्य वस्तु है, बल्कि दृष्टा अगर नहीं होगा तो दर्शन कैसे होगा, है ना। वस्तु है, अगर देखने वाला कोई नहीं है तो उसको दर्शन होगा, अनुभूति होगा, उपलब्धि होगा। तो देखने वाला, उपलब्धि करने वाला कौन है? उपलब्धि करने वाला है मैं। और वो मैं कौन है? आत्मा। तो आत्मा ये भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के द्वारा हो चुका है। आत्मा मिला उसमें। अतएव आत्मा उस 24 तत्व के परे, पंचविंशति तत्व है आत्मा। और आत्मा भौतिक नहीं है, अर्थात आत्मा है चिन्मय, चेतन। और आत्मा है क्षुद्र और अनेक, अतएव उसका एक स्रोत जरूर है। वो स्रोत क्या है? वो स्रोत है परम आत्मा, अर्थात भगवान। अंत में क्या मिला? पंचविंशति तत्व है आत्मा और सर्वविंशति 26वां तत्व है परम आत्मा या भगवान। तत्पश्चात योग के माध्यम परमात्मा के साथ आत्मा का संयोग स्थापन होता है समाधि में। जब आत्मा परमात्मा को दर्शन करते हैं, आत्मा कैसी है? क्षुद्र, और भगवान कैसे हैं? महान। तो कोई क्षुद्र व्यक्ति जब महान व्यक्ति के पास जाता है तो उसका मनोभाव कैसा होता है? श्रद्धा के नाते सर झुक जाता है ना। तो ये सर झुकने का जो अर्थात समर्पण, समर्पण, शरणागति या प्रपत्ति। तो ये जो शरणागति भगवान के पास सामने होता है, ये है भक्ति का, भगवान के साथ प्यार का संपर्क स्थापन करने का उपाय। भगवान के साथ जब हमारा संपर्क बनता है, वो संपर्क कैसी है? प्यार का संपर्क है। तो भगवान के साथ प्यार का जब संपर्क बनता है तो हम भगवान को सेवा करना चाहते हैं। तो ये प्यार के कारण, प्यार के नाते जो सेवा होता है उसे भक्ति कहा जाता है या डिवोशनल सर्विस। तो वैसे वेद में हम देखते हैं क्रमन्वय, क्रमशः, ग्रेजुअली
taking a person from one level to the other, and finally coming to the point of devotion to the Supreme Personality of Godhead. तो वेद से हमें क्या शिक्षा मिल रहा है? अब जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा या भक्ति। तो ये शिक्षा श्रील प्रभुपाद सारा दुनिया भर विस्तार किए हैं, प्रचार किए हैं, और उसके प्रभुपाद की शिक्षा के प्रभाव से आज सारा दुनिया में कितने लोग ये मार्ग को अपनाया है। करोड़ों से अधिक लोग आज ये भक्ति का मार्ग ग्रहण किया है। तो ये जो प्रभुपाद की कृपा से जो एक महान संपदा हमें मिला है, उसको सदुपयोग सही रूप से करना चाहिए, है ना? करोगे? कौन कौन करोगे? जो सही रूप से करोगे 2 हाथ उठाओ और बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच। मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि तुम लोग सब इतने अच्छे से भक्ति मार्ग को ग्रहण किए हो। तो ठीक है, आज मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। कल क्लास, आई एम वंडरिंग वेदर टू गिव द क्लास टुमारो, शुड आई और ओके, आई विल गिव द क्लास टुमारो। Hare Krishna. Actually, I am very tired. मैं फ्लाई किया लॉस एंजलिस से, जो अमेरिका के और प्रांत में है, दुबई, और दुबई में एक दिन मैं ठहरा और उसके पश्चात मैं यहाँ आया दिल्ली। आज सुबह दिल्ली आया और अब मैं उज्जैन आया हूँ। दिल्ली में करीब 5-6 घंटा ठहरा था। But I am very happy to be here. I am very happy to see you. How are you? I just... When did you come? From Bhopal, right? Yeah. When did you come? Day before. Everything is all right? Okay. Hare Krishna. And when did you come? Day before yesterday. Okay, okay, very good. How many of you came from Bhopal? How many of you came from Indore? Yeah, okay. This side, huh? And how many of you came from other places? Okay. Hare Krishna. Huh? Okay, okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaur Premanande, Hari Hari Gaur. Srila Prabhupada ki jai.